सबसे ताजा तस्वीरें समय हम आपको ये लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला और उनके साथ we are here not only four of us, but we have with us our ZOG indicator, Joy, that started to float with us just when we injected into orbit. Joy is floating with us all over the capsule, so sometimes we have to find him and her here with us. But it's an amazing feeling to be in orbit for the first time. When I unbuckled for the first time, I didn't feel 100%, but then everything settled, and when I looked out through the window for the first time, the view was just stunning. Where we are? Now we are flying over Europe. We have just before this conference we saw passing Italy, Sicily, the Greek islands, and the Balkans, and now we are going a bit slightly up north, so towards Hungary and Poland a bit on the side. So yes, this is a great moment to be able to see back on Europe, on home, on our countries, and yes, Maggie, you can show the view through the window. Okay. And over to Shooks. Hello everyone, Namaskar from space. I'm thrilled to be here with my fellow astronauts, as Peggy said, one veteran and three rookies, and wow, what a ride it was. Frankly, when I was sitting in the capsule in Grace yesterday on the launch pad, my only thought in my mind was that let's just go. After 30 days of quarantine, it was a feeling that I just wanted to go. The excitement and all was, probably far away. It was just the feeling that let's just leave here. But when the ride started, it was something like you getting pushed back into the seat. It was an amazing ride. And then suddenly, nothing. Everything silenced, and you were just floating. You unbuckled, and you were just floating in the silence of vacuum. It was an amazing feeling. I wanted to take this opportunity to thank everyone who has been a part of this. I understand that this is not a personal accomplishment. It is a collective achievement of each and every one of you who has been a part of this journey, and to make this possible, I really want to thank each one of you. Also to family and friends, your support has mattered so much. This is so much because of all of you guys. We showed you joy and grace. This is Swan, a great symbol. It looks really cute, but we have a very important swan in our Indian culture, which we are about. Swan symbolizes wisdom. It also has the ability to discern it should be focused on and what does not. So basically, the golden age of distraction, I would say. So this means a lot more, not just a zero-G indicator for us. And I think that we all have symbolism in Poland and in Hungary, in India as well. So I think this looks like a coincidence, but it is not. That it has more meaning than what we are attaching it to it. The capsule itself, Grace, has been very kind. I was not feeling very great when we, got shot into the vacuum. But since yesterday, I've been told that I've been sleeping a lot, which is a good sign. So I think that's a great sign. I'm getting used to this quite well, enjoying the views, enjoying the entire experience, learning like a baby, learning the new steps, learning how to walk, learning how to control yourself, everything, learning how to eat, I think. So it's a new environment, new challenge, and I'm really enjoying this experience with my fellow astronauts here. And it's good to make mistakes, but it's better to see somebody else do that too. So it has been a fun time up here. That is all I have to say. Thank you so much, guys, for making this happen, and I'm sure that we are going to have a great time. And with this, I will hand over to Tibor now. Start hatching, because that's the word that has to
तो ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला की बात आपने सुनी। उन्होंने भारतीय संस्कृति का भी जिक्र किया कि ये जो छोटा सा स्वान या हंस आप देख रहे हैं, इसे ज्ञान का प्रतीक भी समझा जाता है भारत की संस्कृति में। और उन्होंने धन्यवाद दिया कि 30 दिन तक पृथ्वी पर क्वारंटीन अलग रहने के बाद उनकी इच्छा बस यही थी कि अब निकल जाओ, किसी तरह अंतरिक्ष पहुंच जाओ। और अंतरिक्ष में पहुंचकर, यानी पृथ्वी से 418 किलोमीटर ऊपर पहुंचकर उन्हें बहुत अच्छा लग रहा है कि अब वो अंतरिक्ष में पहुंच चुके हैं और अगले 14 दिन तक कई परीक्षण करेंगे। पेगी जो उनकी कैप्टन है वो वेटरन है, बाकी तीनों रूकीज हैं, यानी पहली बार आए हैं। कुणाल मेरे सहयोगी हमारे साथ है। कुणाल, ये केवल ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला की नहीं, ये भारत की अंतरिक्ष में एक नई उड़ान है, सपनों की एक नई उड़ान है ये। बिल्कुल, और जिस तरीके से गौरव आगे चल करके भारत का अपना मिशन, गगनयान मिशन जाना है और 2028 में एक अपना स्पेस सेंटर वहां पर खोलने का एक बहुत ज्यादा जो महत्वाकांक्षी योजना है, उसकी तरफ ये पहला कदम है, ये पहली उड़ान है और इसीलिए खासा महत्वपूर्ण है। इस समय जब डॉकिंग हो रही है और उस समय उसमें लगभग 10 से 20 मिनट का समय लगता है, जो पूरा प्रोसेस है जो आपने समझाया भी, अभी कैसे लैचर्स, 12 लैचर्स है जिसके जरिए उनकी हुकिंग प्रोसेस चलती है, उसके बाद एक कनेक्शन किया जाता है, वेक्यूमाइजेशन प्रोसेस होता है। ये तमाम चीजें जब कंप्लीट हो जाएंगी उसके बाद जो ISS यानी जो स्पेस सेंटर है उसके अंदर चारों अंतरिक्ष यात्री अंदर जाएंगे, वहां लगभग 14 दिन रहेंगे, 60 से ज्यादा प्रयोग करेंगे। लेकिन ये प्रयोग क्यों महत्वपूर्ण है? भारत के लिए बहुत बड़ा ये एक लर्निंग कर्व है, अनुभव लेने का समय है, क्योंकि शुभांशु जो जाएंगे उसके बाद जो अनुभव लेकर के आएंगे उससे पूरा भारत, इसरो और तमाम जो हमारी एजेंसियां हैं उनको इतना फायदा मिलने वाला है जिसकी हम उम्मीद नहीं कर सकते, जिसको आगे आने वाले दिनों में जो हमारी तमाम कई सारी योजनाएं हैं उनको क्रियान्वित करने में गौरव, इसकी बहुत ज्यादा अहम भूमिका होगी। तो वो रुकी जरूर है, जैसा आप कह रहे थे कि एक उसमें वेटरन है, 3 रुकी हैं, तो रुकी जरूर है, लेकिन जब आएंगे तो वो एक वेटरन बन करके आएंगे। और जैसा वो कह भी रहे थे कि गलतियों से सीखना तो बहुत अच्छा होता है और ये कई सारे प्रयोग जो करने वाले हैं अगले 14 दिनों में शुभांशु और उनकी टीम, उससे भारत को कहीं ज्यादा, कहीं ऊंची उड़ान भरने में कामयाबी आने वाले दिनों में मिलेगी। निश्चित तौर पर। और ये डॉकिंग की प्रक्रिया जो आप हमें बता रहे थे, इसमें लगभग 15 से 20 मिनट लगेंगे, क्योंकि ये बहुत ही पेचीदा पूरा सिस्टम होता है। आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि कहीं पर डीप्रेशराइज ना हो जाए कैबिन, कहीं पर कोई डेब्री, कोई मलबा ना हो, कोई टूट फूट ना हो, और एक एक सेंसर का क्लियरेंस आना, वो भी स्पेसशिप से अलग और स्पेस स्टेशन से अलग। समय लगता है इस पूरी प्रक्रिया में। कुणाल, बिल्कुल, लिडार टेक्निक से, कैमरे से, बहुत सारी ऐसी तकनीक है। देखिए, जो जहां पर ये डॉकिंग की प्रक्रिया हो रही है ना, वो हार्मनी पार्ट है, जो ISS का स्पेस सेंटर का जो हार्मनी पार्ट है, वहां पर IDA 3 ये एक तरीके से है। वहां पर ऑलरेडी जो है कई सारे अभी वहां पर अंतरिक्ष यात्री मौजूद हैं। वहां 3 जो अलग अलग देशों के, अलग अलग इलाकों के अभी तक लैब काम कर रहे हैं, जिसमें आपको डेस्टिनी जो है वो अमेरिका का लैब है, उसी तरीके से यूरोप का कोलंबस लैब और एक जापानीज लैब भी है। तो इन तमाम लैब्स की मदद से अलग अलग इसके मॉड्यूल्स होते हैं, उन पर जाकर रहिए मेरे साथ, एक नई तस्वीर आई है, अपने दर्शकों को ये बिल्कुल नई तस्वीर दिखाते हैं। The orbit. We all 4 here represent quite a big chunk of the planet. That's what we think. We come from 3 different continents. We come from 4 different countries, with India, obviously the big country, but the United States, and as well both of us representing the European Union and our countries, Poland and Hungary. Altogether, we represent something around between 25 to 30% of the global population. And that's what drove us and how we look out the window. We see all of you back home. And hundreds of people who were working on the mission, hundreds of trainers that we met, hundreds of principal investigators, scientists, technologists, engineers, and who were working on science complements for our missions, but as well thousands or
millions of students, kids and adults, people back home following our mission. So all this mission is thanks to you, and we represent all of you here in space. When we met for the first time, we have selected the motto for our mission was space for everyone, and I really feel that this became even more true now, but it became true for me when we met for the first time. It felt like a team from the early beginning, and we just get better, more, knowing each other in a better way, and we will try to do our best when we dock to the International Space Station. So this is the moment, we can't wait. घंटे का सफर रहा है अंतरराष्ट्रीय स्पेस स्टेशन तक पहुंचने के लिए। शुभांशु कुछ बोल रहे हैं, ग्रुप कैप्टन शुक्ला, सुनते हैं। और नमस्कार, एक छोटा सा संदेश मेरे सारे देशवासियों के लिए। कुछ ही देर कल 1 महीने क्वारंटीन में रहने के बाद कल हम लोग लॉन्च पैड 39 से लॉन्च हुए, जहां से पहली मून लैंडिंग, जहां से अपोलो 11 मिशन भी लॉन्च हुआ था। और इस समय स्पेस में बहुत ही ज़्यादा उत्साह, बहुत ही ज़्यादा प्राउड फील कर रहा हूँ। और जब हम लॉन्च कर रहे थे तो मेरे स्पेस सूट पे तिरंगा मेरे शोल्डर स्पेस था, जो मुझे कहीं ना कहीं ये याद दिला रहा था कि मैं अकेले ये जर्नी नहीं अंडरटेक कर रहा हूँ, बल्कि आप सब मेरे साथ हैं और इस जर्नी का एक हिस्सा है। तो ये ISS तक जाने के लिए मेरी एक जर्नी की शुरुआत है एक तरह से। अभी हम लोग कुछ ही घंटों में ISS में डॉक करेंगे और फिर हम इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे जाके रहेंगे। बट कहीं ना कहीं ये भी दर्शाता है कि ये भारत के ह्यूमन स्पेस प्रोग्राम की एक छोटा सा स्टेप पर एक बहुत सॉलिड और स्टेडी स्टेप है उस डायरेक्शन में जिस तरफ हम जा रहे हैं गगनयान जैसे मिशन को लेके। तो मैं चाहता हूँ कि आप सब मेरी इस जर्नी का हिस्सा बने, आप भी उतना ही प्राउड फील करें जितना मैं फील कर रहा हूँ, बिकॉज ये सब हमारे केवल टेक्निकल एकम्प्लिशमेंट को नहीं दर्शाता है, बल्कि हमारे ये होप्स या हमारे एम्बिशंस या हमारे एस्पिरेशंस को दर्शाता है कि हम किस तरफ जाना चाहते हैं। तो आइए मेरे साथ इस जर्नी का हिस्सा बनिए। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि अगले 14 दिनों में मेरा जो मिशन एकम्प्लिशमेंट है, जो टास्क है, वो तो मैं अचीव करूं ही, बट ज़्यादा से ज़्यादा इस एक्सपीरियंस को मैं किस तरह से अपनी फ़ोटोज़ और वीडियोज़ में कैप्चर करूं ताकि मैं वापस आके आप लोगों के साथ इसे शेयर कर सकूं। मैं चाहता हूं कि आप मेरे थ्रू ये जर्नी एक्सपीरियंस करें और इसका हिस्सा बनें। एंड चलिए अगले 14 दिन को एक्साइटिंग बनाते हैं और साथ में स्पेस में रहते हैं। धन्यवाद। तो 14 दिन क्या सफर रहने वाला है, लेकिन अभी ये 418 किलोमीटर की जो यात्रा है पृथ्वी से ऊपर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में, और किस तरह से ये ट्रैजेक्टरी पर ये गोल गोल घूमते हुए अंतरिक्ष में जाते हैं, कब यूरोप के ऊपर उड़ रहे हैं और जो बाकी दो उनके साथ रुकी यानी पहली बार अंतरिक्ष में सफर करने वाले यात्री हैं पोलैंड और हंगरी के एस्ट्रोनॉट्स, वो कितने उत्साहित है। भारत के एस्ट्रोनॉट और उनके जो कैप्टन पैगी अमेरिका की है संदीप, ये जो पूरी इनकी कहानी एक तरह से है, तो ये पृथ्वी का 30% ह्यूमन काइंड के लिए एक नए सूर्योदय की तरह है, शिक्षा भी और ज्ञान का एक नया सूर्योदय। बिल्कुल गौरव, जब हम देखते हैं जब एस्ट्रोनॉट्स जो हैं स्पेस में चले जाते हैं तो जो हमारी जो सारी जो एनिमिटीज़ हैं, वॉर्स हैं, वो सब छोड़ के हम एकजुट हो जाते हैं। स्पेस में ऐसी कोई एनिमिटी नहीं, कोई शत्रुता नहीं है। जिस तरह से हम देखते हैं ज़मीन पे जो देश आपस में लड़ते रहते हैं, जो कंपटीशन है वो स्पेस में एक तरह से नहीं है, क्योंकि US और रशिया के बीच में भी बहुत सारा अभी भी कोऑपरेशन है स्पेस फ्रंटियर में। और इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में तो दोनों साथ भी रह चुके हैं और कितनी अच्छा उनका जीवन। और संदीप आप मुझे बताइएगा, और सुदीप आप भी, जिस तरह से रूस हो या अमेरिका एक ही इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में एक साथ अपने वो परीक्षण भी करते हैं, अनुभव भी साझा करते हैं और जरूरत पड़े तो एक दूसरे के काम आते हैं, मतलब एक ही परिवार के रूप में वो स्पेस स्टेशन में रहते हैं, ताकि अलग अलग उसके भाग होते हैं आईएसएस इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का। बिल्कुल गौरव, और ये जो है एक बहुत ही अहम कदम हमने आज उठाया है ऑपरेशन मिशन आकाश गंगा से। इसके आगे 2 और बहुत अहम कदम है। एक तो होगा गगनयान, जब हम
2028 या 29 के करीब हम अपने एस्ट्रोनॉट्स गगनयान के द्वारा स्पेस में पहुंचाएंगे और उसके बाद 2035 में 2025 में हम जब भारतीय स्पेस स्टेशन इस तरह की इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की बिल्कुल तरह हम अपने खुद की इंडियन भारतीय स्पेस स्टेशन ऑर्बिट में लॉन्च करेंगे और उसमें 4 से 6 ऐसे इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉट्स हम रखेंगे। बहुत साल वेट करने की जरूरत नहीं है गौरव, मात्र 10 साल के अंदर हम खुद की भारतीय स्पेस स्टेशन देखने को मिलेगा हमें। संदीप, एक और बात बताइए, क्योंकि लगातार गौरव भी इस बात का जिक्र कर रहे थे, आप भी बता रहे थे और हमने सुना कि सुधांशु शुक्ला कैसे बता रहे कि इस 14 दिन की यात्रा में हर एक पल बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, हर एक रिसर्च बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। आपने बताया कि आने वाले वक्त में करीबन 2 ऐसे बड़े स्टेजेस होंगे जब इससे हमें बहुत मदद मिलने वाली है। क्या क्या ऐसी चीजें होंगी खासतौर पर जिनको आप कह सकते हैं कि एक बड़ा आई ओपनर या फिर एक बड़ा रिसर्च के तौर पर हम इसको इस पूरी मिशन को देखेंगे उसमें? सुमित, सबसे पहले जो होगा कि जो ग्रुप कैप्टन शुक्ला जो है वो 14 दिन रहेंगे स्पेस में। इट विल बी द लॉन्गेस्ट स्टे बाय एनी इंडियन एस्ट्रोनॉट। जो विंग कमांडर राकेश शर्मा थे वो 7 दिन रहे। ग्रुप कैप्टन शुक्ला अभी है 14 दिन रहेंगे। उनकी जो एक्सपोजर है ज़्यादा होगी। इससे हम सबसे बहुत अहम बात हम पढ़ना सीखना चाहेंगे कि ह्यूमन बॉडी की स्पेस में कैसे एक्सपीरियंस होती है, क्या प्रेशर्स फील करने को मिलते हैं। ये जो एक्सपीरियंस है वो हम हमारे बाकी जो गगनयान के जो एस्ट्रोनॉट कोर है, इंडियन एस्ट्रोनॉट कोर, उसको प्रशिक्षण करने में मदद करेगी। तो दिस विल बी द नंबर 1। अच्छा, एक बार आपको सुनवा देते हैं कि कप्तान और मिशन पायलट की क्या बातचीत हो रही है, सुनिए। And we're looking forward to getting on board the International Space Station and getting that underway. You know, we have a lot of very high scientific goals, but obviously realizing the return of these 3 countries to space is very special. ठीक, तो 3 अलग अलग देश और कप्तान अमेरिका की यानी भारत के मिशन पायलट हैं और सब हंसते हुए मुस्कुराते हुए अभिनंदन कर रहे हैं पूरे विश्व का, क्योंकि ये तस्वीरें समय पूरा विश्व एक साथ देख रहा है।